It's our first video for our class 7 student, and the chapter is fiber and fabrics. So at first, what is fiber? A fiber is a thin thread of natural or artificial substance, especially one that used to make clothes, ropes, etc. Even you see the paper, to just see the paper under the microscope, then you just observe a thin thread-like structure on that paper. So that thread-like structures are basically fibers. So fibers combined and form fabrics. It means our clothes. And fiber is basically a different type of compound known as polymers. So basically fibers are formed by a special type of organic compound known as polymers. These polymers are formed by monomers. Monomers, it means small units, and these small units combine together and form a larger unit, and that larger unit is called polymer, and these polymer molecules formed fibers. And fibers are of several kinds, all of you know about it. So fibers are of basically three types. These are natural fiber, artificial fiber, and semi-synthetic fibers. So artificial fibers are also termed as synthetic fiber. So natural fiber, it means those fiber which are obtained from nature directly. You are just obtained from nature, like wool, jute, silk, etc. Artificial fibers which are prepared in laboratory by some chemical method. In this chemical method, maybe some inorganic compounds or inorganic compounds are mixed together, or some organic compounds are mixed together and form a larger compound, larger molecules called polymer. And these polymers are known as synthetic fiber or artificial fiber or man-made fiber, क्योंकि आपने इसको लैब में प्रिपेयर किया है। तो जब आपने इसको लैब में तैयार किया, आर्टिफिशियली आपने इसको तैयार किया, तो ऐसे फाइबर को हम आर्टिफिशियल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक्स जो कि ऊल के सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में आप यूज करते हो, टेरिकॉट ऑल्सो, तो ये सारे आर्टिफिशियल फाइबर्स के फॉर्म हैं। Natural fibers are also sub-classified as plant fiber and animal fiber. So, those fiber which are directly obtained from plants are known as plant fiber, and these are natural fibers like cotton, jute, flax, coconut also. So, all of these are plant fibers. Similarly, natural fibers which are obtained from animals. So, these are animal fibers like wool, silk. तो these जो भी हैं, ये सभी जो भी कि किसी एनिमल के फर से आप एक्सट्रैक्ट करते हो, उसके बाल को आप, हेयर को आप यूज करते हो एक फाइबर के रूप में, तो ये सारे के सारे एनिमल फाइबर्स हैं, एंड दीज आर आल्सो पार्ट ऑफ नेचुरल फाइबर। सो एट फर्स्ट जो ये फाइबर हमारा बन रहा है, तो ये फाइबर बन रहा है एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जिसको हमने नाम दिया पॉलीमर। और ये पॉलीमर छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बनते हैं। जैसे इसको मतलब एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ऐसा हम लोग बता सकते हैं कि सर अगर कोई भी एक यूनिट है हमारा, एंड इस यूनिट के सपोज समथिंग एल्स कुछ भी एक मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल के n यूनिट्स अगर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में अगर जाएंगे, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन अगर इनका होगा, तो वैसे केस में ये दोनों यूनिट या जो भी है ये अब n यूनिट्स हमने यूज किया था, मीन्स हमने n मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ इस्तेमाल किया था इसका। तो जो ये n मॉलिक्यूल्स हैं, ये अब एक दूसरे के साथ चेन के फॉर्मेट में जुड़ते चले जाएंगे अप टू nth वैल्यू, मतलब जितना मैंने यहाँ लिया ये उतना तक आगे चले जाएंगे, n वैल्यू तक चला जाएगा। यानी ये आगे जाकर के आप यहाँ पे n लगा दोगे, ये n वैल्यू तक जाएगा। यानी जितने आप यहाँ पर ये यूनिट्स लेंगे, वो सारे यूनिट्स एक दूसरे के साथ लीनियर फॉर्म में कंबाइंड होंगे, और ये n का वैल्यू लाख हो सकता है, समथिंग 1000, 10,000, तो जो भी होगा लार्जर यूनिट होगा। और इस तरह के जो भी लार्जर यूनिट्स बनते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, उनको हम पॉलीमर बोलते हैं, और जो इधर स्मॉलर यूनिट्स जो यूज किए जाते हैं, इनको हम मोनोमर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इथीन की बात करें, इथीन C2H4, so C2H4 is basically alkene group compounds and their structure is this one.
So n units of ethene undergoes polymerization. It means same reaction undergoes, यहाँ पे जा रहा है। तो वैसे केस में C2H4 हॉल N का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर C2H4 के N मॉलिक्यूल्स यूज किए गए हैं और यहाँ पे C2H4 के N यूनिट्स आपस में ऐड हो गए। मतलब ये कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये हमारा ब्रेक हुआ, तो एक एक बॉन्ड ओपन हो गया। जो दूसरा वाला, क्योंकि हमारा कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो टेट्रावैलेंट होगा तो एक कार्बन हमेशा हमारा 4 ही बॉन्ड पूरा कर सकता है। तो इस कार्बन का हमारा 4 बॉन्ड पहले से पूरा हो रहा था, अभी भी इस कार्बन का हमारा टोटल 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है अभी के केस में। इस केस में जैसे ही आप इसको हिट करते हो तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करता है और एक एक बॉन्ड ओपन हो जाता है बाहर में। अब ऐसा वाला ही एक दूसरा यूनिट आएगा और वो आकर के यहाँ पे अटैच होगा, क्योंकि आपने इसके इथीन के n यूनिट्स आपने यहाँ यूज किए हैं, तो ये एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ते चले जाएंगे और जुड़ करके एक लार्जर यूनिट का फॉर्मेशन करेगा और इसी मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर बोलते हैं। सो पॉलीमर्स आर वन लार्जर यूनिट्स। Larger unit, it means their molecule consist more than thousands of atoms of carbon। तो ये कार्बन के हजारों एटम्स कंसिस्ट करते हैं और इस तरह से एक लीनियर चेन कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं और इन कंपाउंड्स को हम बेसिकली पॉलीमर बोलते हैं। और यही पॉलीमर सारे के सारे फैब्रिक्स में पाया जाता है, सारे के सारे फाइबर में मिलता है आपको, चाहे वो नेचुरल फाइबर हो, वो आर्टिफिशियल फाइबर हो, वो सिंथेटिक फाइबर हो। तो किसी भी फॉर्म के अगर हम फाइबर की अगर हम बात करते हैं तो वो कुछ ना कुछ इसी तरह के पॉलीमर से उनका फॉर्मेशन हुआ है। नेचुरल फाइबर कॉटन की अगर हम बात करें तो कॉटन 1800 BC से ही इंडिया में लार्ज पैमाने पे इसका उत्पादन होता था। इसका कारण है कि इंडिया का जो हमारा क्लाइमेट है ये बेसिकली वार्म क्लाइमेट है और यहाँ पे ब्लैक क्लेई सॉइल हमको मिलता है। तो इस ब्लैक क्लेई सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट होने के कारण कॉटन का उत्पादन यहाँ पे ज़्यादा किया जाता है, यानी इसकी खेती की जाती है। ये बेसिकली जो कॉटन का प्लांट होता है ये 1 to 2 मीटर लेंथ के इसके बेसिकली प्लांट्स होते हैं जो 60 डेज में फ्लावरिंग के लिए वो अवेलेबल होते हैं, यानी अप्रॉक्स 60 डेज का उनका प्लांटेशन पीरियड होता है जिसमें कि उसमें फ्लावर्स आ जाते हैं। जो फ्लावर्स आते हैं और जब वो मैच्योर्ड हो जाते हैं फ्लावर्स तो उनको हम कोकोनट बॉल के नाम से जानते हैं। उन कोकोनट बॉल से उनके छोटे जो भी कोकोनट बॉल्स उनके मिलते हैं तो उनके अंदर सीड्स होते हैं। उन सीड्स को गिनिंग प्रोसेस से बाहर आप करते हो और उस कॉटन बॉल को फिर प्यूरिफाई कर लिया जाता है और इस कॉटन बॉल से निकलने वाले कॉटन का हम वेरियस सेक्टर्स में यूज़ करते हैं। टेक्सटाइल्स फॉर्मेट में हम करते हैं, जितने भी तरह के आप कपड़े का इस्तेमाल करते हो कॉटन के अलग अलग। हॉस्पिटल्स में जो हम लोग स्टेरिलाइज्ड कॉटन का इस्तेमाल करते हैं, पट्टी बैंडेज के फॉर्म में आप उसका यूज़ करते हो, और भी कई वेरियस फील्ड में हम कॉटन का यूज़ करते हैं, जिसमें कि कॉटन के पॉलीमर्स अलग अलग तरह के सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स भी बनाए जाते हैं जिसको कि आप टेरिकॉट वगैरह बोलते हो। यानी इसमें जब भी आप एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर जब हम फॉर्म्ड करते हैं या सेमी सिंथेटिक फाइबर जब बनाना होता है तो एक नेचुरल फाइबर के नॉन अमाउंट को लिया जाता है। जैसे कि हम कोई भी अमाउंट लेंगे, 500 ग्राम अगर हमने नेचुरल फाइबर कॉटन लिया हुआ है तो वैसे उसके हेल्प से हम 1 kg और 1.5 kg हम टेरिकॉट का उत्पादन करते हैं। तो इस तरह से जो कि एक नेचुरल फाइबर को आप आर्टिफिशियली जो एक आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर में जो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इस वैसे सिंथेटिक फाइबर को जो कि नेचुरल फाइबर से आर्टिफिशियल फॉर्म से जनरेट किया गया हो उनको हम सेमी सिंथेटिक बोलते हैं, क्योंकि उसमें लिटिल बिट इस्तेमाल नेचुरल फाइबर का होता है। और वैसे फाइबर्स जिनको कि डायरेक्ट हम लैब में प्रिपेयर करते हैं उनको बनाने के लिए जिन कॉम्प्लेक्सेस का यूज़ किया जाता है वो भी प्लांट और एनिमल डेरिवेटिव्स नहीं होते हैं, उनको भी हम आर्टिफिशियली जनरेट कर रहे होते हैं। तो वैसे कॉम्प्लेक्सेस को कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। जैसे नाइलॉन, आपका जो नाइलॉन है, फिर पॉलीथीन, पीवीसी ऑल्सो, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का इस्तेमाल पाइप्स वगैरह में किया जाता है। तो इस तरह के जितने भी फाइबर्स होते हैं जिनका कि हम डायरेक्ट नेचुरल फाइबर से हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो उनको सेमी सिंथेटिक बोलेंगे। और अगर आप डायरेक्ट अगर लैब में अगर बना रहे हैं तो वो फाइबर हमारा सेमी सिंथेटिक होगा। वैसे ही जूट की अगर हम बात करें तो जूट भी एक प्लांट से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। 2 मीटर 1.5 मीटर के आसपास के जूट के प्लांट्स होते हैं और उसके ऊपर एक
जस्ट लाइक स्किन होता है उस प्लांट का, और उसी प्लांट के स्किन को वाटर में कुछ टाइम तक मर्ज रखा जाता है 15 to 20 डेज अप्रॉक्स, जिससे कि वो उस स्टीम के ऊपर का जो हमारा पार्ट होता है जिसको कि हम स्किन बोल रहे हैं, तो वो स्किन लूजली बाउंडेड हो जाता है, यानी उसमें मतलब लूज हो जाता है धीरे धीरे उस स्टीम के ऊपर पानी में रखने के कारण। उसको फिर बाद में अलग कर लिया जाता है और इसके बेसिकली पैकेट्स बनाए जाते हैं, जूट के जो बैग्स बनते हैं, फिर वो कई तरह के मैट्स फॉर्मेशन किए जाते हैं, रोप बनता है, रस्सी जिसको हम बोलते हैं रस्सी, तो रस्सी बनाते हो आप जूट से। कई ऐसे फाइन जूट भी मिलते हैं जिनके कि कुछ एक कपड़े भी बनाए जाते हैं। भारत के कई ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर कि जूट का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पे लोग कपड़े भी जो फाइन जूट्स होते हैं उनके कुछ क्लोथ्स बनाए जाते हैं।